Hello everyone, welcome back to Limba Classes, and today we are presenting you the next chapter of the world history, and the name of this chapter is Renaissance. So it is for MHI 02, and I welcome you all to the Limba Classes. So before just knowing about the Renaissance, it will be better if we create a base of this Renaissance, that what are the causes which led to this Renaissance, right? So this, like, we will learn more about the causes to this renaissance and more about the medieval यूरोप, बिकॉज ये जो रेनेसेंस का टॉपिक है ये medieval यूरोप का पार्ट है. So if like we know more and more about the medieval Europe, then we have a clear idea of renaissance also, and it will be easy to understand this renaissance. So जो मध्यकाल का यूरोप था, medieval यूरोप, इट वॉज अ पीरियड इन यूरोप विद द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर. तो आपको ये पता ही होगा कि जो रोमन एम्पायर है उसके टू पार्ट्स थे, एक ईस्टर्न पार्ट एंड एक था वेस्टर्न पार्ट. सो ईस्टर्न यूरोप फेल टू द कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453. सो इट वॉज अ फॉल ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर. So the people of the Byzantine Empire, they fled to the western part of the Roman Empire, that is Western Roman Empire, and when they went from the east to the west, what they saw is they saw a widespread lawlessness. There was no law and order. वहाँ पे चर्च का रूल था, चर्च ही सारे रूल्स फ्रेम करती थी, और जो ज़्यादातर पावर्स थी वो चर्च के जो पोप के थ्रू ही एक्सरसाइज की जाती थी, और पीपल को बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी टू फॉलो देयर ओन पर्सपेक्टिव. तो वो जो भी चर्च के ऑर्डर होते थे वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करने होते थे. इस वजह से जो पीपल थे वो एक तरीके से बाउंडेड लेबर टाइप के थे, बिकॉज दे आर नॉट फ्री बोथ मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की सिचुएशन भी थी, लॉलेसनेस था, लिबर्टी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी. It was, that is why we refer to this period as a dark age. Okay, अंधकार, क्योंकि it was a age of fear. People, जो वहाँ के लोग थे उनमें fear था कि if they will not follow the guidelines or the instructions of the church or the pope and the people who are linked to these institutions, so they will be punished by the god for their act. सो इट वॉज अ एज ऑफ डार्क सुपरस्टिशंस. अंधविश्वास जो होता है ना, तो ये एक वैसी एज थी. वहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्कुल ही नेग्लेक्ट था यूरोप में उस टाइम में, और लोगों के बिल्कुल भी फैक्ट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेते थे. सो इट वॉज एन एज ऑफ फियर, डार्क सुपरस्टिशन, एब्जेक्ट पॉवर्टी, ट्रेनिंग एंड इनह्यूमन लिविंग कंडीशंस. The medieval period in Europe was, that is why, known as a dark age. So when these people of the East Roman Empire, after the fall of the Byzantine Empire, they moved to the western part. So when they moved there and they saw the situation of the people, कि people बहुत ज़्यादा वहाँ पे poverty है, lawlessness है, so they introduced the things which they were inculcating in the eastern part, the Roman Greco culture. They had a very rich Roman Greco culture of structures, like literary also, music also. So they reintroduced all those things in the western Roman Empire also. So this rebirth of the ideologies of the classical thoughts of Eastern Roman Empire into the Western Roman Empire is known as Renaissance. So when the fall of the Roman Empire removed a powerful central authority from Europe, as a result, political insecurity and lawlessness was rampant. Now, when there is no powerful central authority, then the power is slipped into the more influential people, and they do not frame the law for the welfare of the public because they are not afraid about the consequences of that. So that is why it was the age of a dark age. Then, as a result of political insecurity and lawlessness, the Western Europe sank into obscurity, and foreign and inland trade received a severe setback. When the people were not free, they are not doing things according to their will. Hence, it also affected their daily lives and also the trade and agriculture of that area. So, the art and the learning languished. The result, art and learning languished.
People were burdened with heavy taxes, which were, implied by the churches in the name of the god. As a result of all this, the power and authority of the church and the pope increased. Obviously, when the power of such large kingdom like the Roman Empire slipped into the hand of few people, you can imagine what the situation would be there. अगर किसी एक इंसान के हाथ में बहुत सारी पावर्स दे दी जाएं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हम देख सकते हैं या सीख सकते हैं मेडिवल यूरोप से. सो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द कॉमन सिटीजन बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड अबाउट द रिजल्ट ऑफ दैट. So people were burdened with heavy taxes, and Christian monks traveled all over the continent, converting people to Christianity, which gradually became popular. So one more thing about this medieval times is also like there was a mission, and इसी मिशन की वजह से ही जो पुर्तगीज़ थे वो इंडिया आए थे, क्योंकि उनका एक जो ट्रेड का मिशन था उसके साथ साथ एक ये भी मिशन था कि वो वहाँ की they were finding new lands, and they wanted to convert the people of that land into Christianity. So it was a mission of Christianity जो स्पेन और पुर्तगीज़ ने डिवाइड किया था. So there was a imaginary line, they divided the word by a imaginary line in Atlantic Ocean. So everything to the east of जो मतलब Atlantic Ocean के जो भी टेरिटरी ईस्ट में थी उसको पुर्तगीज़ ने बोला था कि वो वहाँ पे जाके वो ट्रेड करेंगे और वहाँ की पॉपुलेशन को क्रिश्चियन रिलीजन में इनकल्ट करेंगे. एंड जो भी उस अटलांटिक लाइन के वेस्ट में कंट्रीज़ थी स्पेन ने बोला था कि वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ की पॉपुलेशन को क्रिश्चियनाइज करेंगे. सो दैट इज़ वाई द मिशन ऑफ कोलम्बस एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ साउथ अमेरिका एंड अमेरिका. So this was also a part of a medieval Europe to convert the new continents and their local population into a Christian religion. So thus in the 10th century AD, the kings of the Italy, Germany and few other countries joined hands and established the Holy Roman Empire. Right. So for all these reasons, the period of the 5th to 11th centuries is referred to as a Dark Ages, because there was widespread superstition regarding the religion, regarding the things. There was a lack of scientific temperament and there was a lack of rational thinking also, right? So there was also, you might have heard about the term crusades. I will tell you about this crusades later. It is also related to Christianity and it's a battle between the Christians and the Islamic world. So these all the conditions led to the Renaissance. Now coming to our main topic, Renaissance. So in the 5th century AD, people of Europe developed interest for art, literature, architecture, painting and culture of Greek and Roman. As I told you, with the fall of Byzantine Empire, the laureates and learned men of the East Roman Empire shifted to the West Roman Empire, and they inculcated those ideas to that population. So the beacon light of Renaissance, which first appeared in Italy. So this is also important that Renaissance first started. What is the birthplace of Renaissance? It is Italy. So Italy से ये बाकी सारे यूरोप्स के कंट्री में ट्रैवल किया with no time, like it very fast time. ये इटली से बाकी सारे सिटीज़ में एंड बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको भी इंट्रोड्यूस हुआ ये. The expanded horizon of human knowledge was reflected in various fields, including art, literature, science. So now with this Renaissance, what this the term Renaissance is. Renaissance का मतलब होता क्या है basically? Renaissance का मतलब होता है rebirth. Rebirth. Now what is this rebirth? किस चीज़ का rebirth था? Rebirth of scientific temperament, rebirth of rational thinking, right? So when this it is kind of a cultural movement, it is a rebirth, and in the main specific place where this moment started, it's Florence and it is in Italy. So these are the important points for like the perspective of your exam. You should just remind it. So Renaissance means rebirth or new birth, analyzed from the point of history. Renaissance means the love.
eagerness and interest which were shown towards art and literature of Greek and Rome in the 15th century AD, right? So, in medieval times, the church regulated education and cast its influence upon the society. When human mind wanted to be free from that bandage and welcome new light, Renaissance took place. So, like I told you, when the Dark Age ended, people started thinking. They started questioning the law and order which were framed by the churches. सो जब उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था चर्चेज़ का, इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस उनके ऊपर लगाए गए, तो उन सब चीज़ों का ही रिजल्ट था कि एट लास्ट पीपल्स जो मतलब वहाँ के लोग थे उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने स्टार्ट किया ये सोचना कि जो भी चर्च हमें बोल रहा है करने को वो कितना एक फैक्ट के बेस पे ठीक है उसको फॉलो करना, या ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग है, या मतलब लाइक यू नो इट इज़ अ मिसयूज़ ऑफ पावर बाय द पोप एंड द इंस्टीट्यूशन. सो जब लोगों ने इस तरीके से सोचना स्टार्ट किया उसको ही बोलते हैं कि अंधकार से निकल के उन्होंने रेनेसेंस की न्यू बर्थ की तरफ अपना स्टेप लिया. जब आप किसी चीज़ को क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो आप तो वही फॉलो कर रहे हो जो आपको बोला जा रहा है. जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो तब जाके आपको रियल नॉलेज गेन होती है, तब जाके आपको पता लगता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. यू गॉट दैट एबिलिटी टू डिसाइड बिटवीन द टू. सो रेनेसेंस, जब वो रेनेसेंस हुआ लोगों ने स्टार्ट करा फैक्ट्स के बेस पे चीज़ों को जज करना और क्वेश्चन करना और बिना लाइक ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करना, तो उससे क्या हुआ, रिफॉर्म हुआ. रिफॉर्म मीन्स रिफॉर्म मतलब जो चीज़ें पहले से चलती चली आ रही हैं उनमें जो भी गलतियां हैं या जो भी कमियां हैं जो एक सोशल इविल फॉर्म के बेसिस में लोगों ने देखा उसको रिफॉर्म किया, उसमें डेवलपमेंट लाया, उसमें चेंजेस लाया अकॉर्डिंग टू द चेंज सोसाइटी. It also led to the scientific revolution when the people started judging the things on the basis of a fact. So this led to many scientific revolution also, and finally what we got is enlightenment. You can also find a video regarding this enlightenment. It's a complete separate chapter and you can find the video on this channel. For your more perspective view and more elaborate, you can just watch this video also. So moving forward, so when people started to migrate to the western part, they reintroduced all the things they learned. So this built an interest of Western Roman Empire also, in art, literature, architecture. So the invention of printing machine was responsible for Renaissance. So I think you must be knowing this. There was a person, the name is Gutenberg. He invented the printing press. And with the invent of printing press, now the availability of written material is very common. Now people have the access to all the books, to all the philosophies, the new philosophies due to the Renaissance. So the new ideologies spread very fast. So one main point of this, the huge spread of this Renaissance is also the printing press, which was invented by Gutenberg. So in 145 AD, John Gutenberg of Germany invented printing machine and letters and printed book. So when the books are available, the people started writing, they got printed their books, and then like with this process there was a widespread availability of the written material and people now can inculcate new ideologies, new things. So this is very great reason, or it is a very great initiative which led to this the success of this Renaissance. क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो फिर हर एक बुक को अपने हैंड स्क्रिप्ट्स होते थे, हैंड तो मैन्यूस्क्रिप्ट जिन्हें बोलते हैं. तो बुक्स एक अगर बुक को लिख के कंप्लीट किया जा रहा है और उसी चीज़ को अगर प्रिंट किया जा रहा है, यू कैन जस्ट कंपेयर कि कितना एक अमाउंट ऑफ टाइम सेव होता है. सो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बुक्स वर अवेलेबल इन अ लार्ज क्वान्टिटीज़ एंड पीपल को वो एसेस था
इट वॉज चीप ऑल्सो. सो पीपल, लोगों ने मतलब उनको बहुत इंटरेस्ट था नई नई चीज़ें पढ़ने का, न्यू फिलासफीज पढ़ने का. देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ बुक्स ऑन म्यूज़िक ऑल्सो, आर्ट ऑल्सो, आर्किटेक्चरिंग ऑल्सो. तो लोगों ने उनको पढ़ना स्टार्ट किया और इससे जो आइडियोलॉजीज थी ना वो स्प्रेड होना स्टार्ट हुई. पीपल गैदर भी होते थे कॉफ़ी शॉप्स में टू डिस्कस दिस न्यू आइडियोलॉजी. सो एक इंसान से दूसरे इंसान से इन काइंड ऑफ पंचायत और भी से. सो वो जो एक आइडिया का स्प्रेड होता है, सो इट इज़ वेरी फास्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. So William Caxton brought this machine to England in 1477 AD. With the march of time, printing press was established in Italy, France, Belgium, and other European countries. Thus, books could be published very easily with a short span of time. People could easily get books for study and learn many things. This galvanized Renaissance. As I have told you कि जो printing press की वजह से वो जो मटेरियल था, जो न्यू मटेरियल था, जो लोगों ने न्यू आइडियोलॉजीज के बेसिस पे वर्क अपना प्रिंट करवाया था, वो एक ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल भी था लोगों के लिए. और लोग उस गैदरिंग्स में उनको डिस्कस करते थे, कॉफ़ी शॉप्स में, पब्लिक मीटिंग्स में एक डिस्कशंस भी होते थे और बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी थी. इस वजह से रेनेसेंस एक लार्ज स्केल पे सक्सेसफुल, we can call it a successful reform or successful movement. Many kings, nobles, merchants encouraged new literature and art. Like Francis I, the ruler of France, Henry VIII, the king of England, Charles V of Spain, Sigismund I, the king of Poland, invited many persons having new ideas to their court and patronized them. तो क्या होता है जब आप लाइक दिस इज़ नोन एज अ ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर. तो जब एक लर्नड मैन आता है किसी दूसरे सिटी से, आप बोलिए या दूसरे एम्पायर से, तो जब वो दूसरे एम्पायर में जाता है तो अपने साथ जो भी वहाँ के एक हेल्दी कल्चर होता है ना उसको भी लेके जाता है और वहाँ पे वो जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है. फिर जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं और जो पहले से चीज़ें चल रही होती हैं उनका एक हेल्दी अमेलगमेशन होता है, एक मिक्सचर होता है. उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, रिजल्ट होता है, बहुत ही हेल्दी होता है और एक न्यू कल्चर डेवलप होता है. दैट न्यू कल्चर इज़ अ मिक्सचर ऑफ एग्जिस्टिंग कल्चर एंड अ मिक्सचर ऑफ द न्यू कल्चर जो एक नए पर्सन के द्वारा ब्रॉड किया जाता है उस एम्पायर में. The men with new thoughts paved the way of Renaissance. They advised not to accept anything blindly which is not proved properly. Peter Abelard of the University of Paris inspired these contemporaries to create enthusiasm among. So, as the Renaissance basically is a rebirth. It is a rebirth of the classical thoughts. It's a rebirth of art, literature of the East Roman Empire into the West Roman Empire. So people started questioning things also. They started questioning the authority. So we call this new age as a renaissance, and the period saw the development of a new phase of art, glorifying the human body while elevating art to new heights never scaled before. The Renaissance geniuses underscored the Bible truth that God made man to rule the earth. It was implied that man was God's representation on earth. So earlier it was a रूल और मेंटालिटी दैट भगवान ने इंसान को बनाया ताकि वो अर्थ पे जाके रूल करे. तो जो रेनेसेंस के बाद आइडियोलॉजी डेवलप हुई उसमें क्या लाइक द व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कि जो ह्यूमंस है ना वो गॉड का ही रिप्रेजेंटेशन है अर्थ पे एंड नो वन हैड एनी बिजनेस टू कर्टेल एनी अदर्स राइट. और जब हर एक इंसान खुद भगवान का रिप्रेजेंटेशन है तो किसी एक इंसान को वो अथॉरिटी नहीं है कि वो दूसरे के राइट्स और प्रिविलेजेस को हिंडर करे या उसको परेशान करे. सो दिस वॉज अ न्यू आइडियोलॉजी. और इस आइडियोलॉजी का बर्थ कब हुआ था? इस आइडियोलॉजी का बर्थ हुआ था रेनेसेंस में. सो some of the great artists of this periods are Leonardo da Vinci,
And there were many more, like Galileo also, Raphael also, Cellini also, Rubens, Botticelli, Vermeer. So it was a whole period of development of new ideologies, and it also resulted, in the American War of Independence, the French Revolution, the rise of nationalism later, the Reformation, the industrialization, birth of imperialism, socialism. So this Renaissance and Enlightenment are the basis for the development or for the change. जब इंसान फाइनली मिडिवल से मॉडर्न मैन कहलाया, तो उसमें इस रेनेसेंस का और एनलाइटनमेंट का एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन था, जब लोगों ने चर्च की अथॉरिटी को ओवरथ्रो किया और उन्होंने फैक्ट्स और साइंटिफिक टेम्परामेंट को एक्सेप्ट किया. So this is a renaissance. Now moving forward in our chapter. So okay. So we were like Peter Abelard of the University of Paris inspired his contemporaries to create enthusiasm among themselves for research. So research is like, earlier people were following all the laws and the things which were framed by the church. तो चर्च जो भी लॉ बनाता था या जो भी कहता था रिलीजन के बेसिस पे वो लोग मान लेते थे बिना किसी क्वेश्चन के. एंड नाउ इन रेनेसेंस उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक चीज़ को एक फैक्ट पे और एक साइंटिफिक नॉलेज पे या रैशनल थिंकिंग पे जज करना स्टार्ट किया. So this also enhanced the research. So this Renaissance period inculcated, or it resulted in a scientific development. Many discoveries happened after this. So he advised his students not to accept any doctrine blindly as God's version. उन्होंने अपने students को यही बोला कि like accept nothing on the doctrine blindly as God's virgin, कि God ने ऐसा बोला है इसलिए ऐसा है. Everything has a reason behind that. They should accept anything if it is convinced by reason. His book Yes and No inspired the youth as it revealed the defects of church system. He was compelled by Christian priest to withdraw his view and he did it. So you can see the whole chapter of Renaissance based on the questioning of the existing rules and regulations. So when people started questioning the rules and regulations, they started questioning the authority of the church. The new ideologies developed, like the human is now representation of a god, and it is the right of no human to infringe the rights of other human. So it is also a kind of a terminology of equality. Equality was not developed at that time, it was going to be developed in the coming time with the changing society, but it is a basis of equality in the society. Now we learn about the result of Renaissance. So उसके consequences क्या हुए, Renaissance के क्या result हुआ वो हम पढ़ेंगे इसके बाद. Now the thing is that the first topic in the result is literature. So Renaissance literature had its birth in Italy. As I have told you, the whole of a Renaissance movement initiated in Italy. तो जो लिटरेचर का जो बर्थ हुआ दोबारा से, वो कहाँ पे हुआ, सबसे पहले इटली में हुआ. द फर्स्ट नोटेबल क्रिएशन इन दिस डायरेक्शन वॉज डेंटेज डिवाइन कॉमेडी. दिस बुक वॉज रिटन इन इटालियन लैंग्वेज and it was meant for the common people. In this book, he describes about the heaven, hell, and the other world. It introduced new themes like love of one's country, love of nature, as well as role of individual. So literature is like, जब लोगों ने वहाँ की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एक न्यू थॉट प्रोसेस स्टार्ट करी सोचने की. उन्होंने सोचना स्टार्ट किया. उससे पहले तो वो सोचते नहीं थे, हर चीज़ को ब्लाइंडली रिलीजन के नेम पे फॉलो करते थे. सो व्हेन पीपल स्टार्टेड टू थिंक, दे स्टार्टेड टू एक्ट इन अ डिफरेंट मैनर. तो जो उन्होंने नया फिलोसफीज़ डेवलप की, उसको लिखा, वो वहाँ का लिटरेचर बना. उस बुक में जो यहाँ पे एक बुक है डिवाइन कॉमेडी, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि व्हाट अबाउट द हेल, हेवन एंड अदर वर्ल्ड.
ये जो मतलब जो उस टाइम का लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा ही अपनी कंट्री के लव पे, विच जो बाद में जाके नेशनलिज्म का जिसने वर्ड लिया, बाद में जाके नेशनलिज्म में डेवलप हुआ, वो ज़्यादातर उस पर बेस्ड थी। लव ऑफ नेचर एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का क्या रोल है ऑन द अर्थ। इट इज़ नॉट लाइक द एवरी वन पर्सन हैज़ टू सर्व द चर्च इन द नेम ऑफ द गॉड। हर एक इंडिविजुअल का अपना रोल है। तो उस टाइम का लिटरेचर मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स पर डेवलप होता था, नेचर के लव के ऊपर, कंट्री के लव के ऊपर, इंडिविजुअल के रोल के ऊपर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ट। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि जब ईस्ट रोमन एम्पायर फॉल हुआ और वहाँ के जो लर्न मैन्स थे, सिविलाइज्ड मैन थे, जब वो वेस्ट पार्ट में आए तो उन्होंने वहाँ का ग्रेको रोमन कल्चर इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न पार्ट में। उन्होंने वहाँ का आर्ट, लिटरेचर सब इंट्रोड्यूस किया। तो जो लाइक द बोल्ड डिपार्चर फ्रॉम मिडिवल ट्रेडिशन वॉज नोवेयर मोर क्लियरली revealed than in art of Renaissance period. The bold departure from medieval tradition was nowhere more clearly revealed than in the art of Renaissance period. Before Renaissance, the chief art of the medieval period was essentially Christian. Now you can see कि जो मतलब Dark Ages का art था, that too also was focused only on one topic, that is Christians. अभी हमने देखा कि लिटरेचर में जो न्यू सब्जेक्ट्स या न्यू टॉपिक्स इनकलकेट किए गए, जैसे कि लव ऑफ नेचर, लव फॉर द कंट्री, नॉट लव फॉर द गॉड। जो न्यू टॉपिक थे वो लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द नेचर, लव फॉर इंडिविजुअल सेल्फ। लोगों ने मतलब वहाँ की ये आइडियोलॉजी हुई कि इंसान को पहले अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही एक रिप्रेजेंटेशन है या एक स्वरूप है इंसान। सो इन लाइक आर्ट ऑल्सो, डार्क एजेस में जो आर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी पे ही बेस्ड थी। नाउ आर्ट वॉज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद रिलीजन। द आर्टिस्ट यूज टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ मॉन्क्स, बिशप्स, प्रीस्ट एंड द चर्च हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो जब कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट की होती है या रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी को बोलो कि आपको कोई पेंटिंग बनानी है और आप उसे प्रॉपर गाइडलाइंस दो दैट आपको एक रेड कलर ही यूज़ करना है, आपको इस स्पेसिफिक स्पेस में ही उस पेंटिंग को बनाना है, आपको स्पेसिफिक ब्रश या पेंसिल से ही बनाना है, तो उसमें से डेवलपमेंट कैसे होगा? मतलब जो इंसान उसको बना रहा है वो कैसे खुद के थॉट्स या खुद की इमेजिनेशन यूज़ करेगा? और यही सेम रोल था चर्च का। जब चर्च फ्रीडम ही नहीं देता था वहाँ के सिविलाइजेशंस को, वहाँ के पीपल को, तो वहाँ के पीपल कैसे अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू कुछ नया करेंगे, नई डिस्कवरी करेंगे, नई रिसर्च करेंगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो जब इसीलिए मिडिवल यूरोप की जो आर्ट भी थी वो डेवलप्ड नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी पे डेवलप थी। वो सिर्फ मॉन्क्स के पिक्चर्स, बिशप्स के पिक्चर, प्रीस्ट के, यही सब बनाते थे। So the next thing is, so after Renaissance, this also took a huge development. Next topic is architecture. So architecture भी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें रेनेसेंस का बहुत ही ज़्यादा हमको सिग्निफिकेंस दिखता है या इम्प्रेशन दिखता है, क्योंकि वहाँ का आर्ट, कल्चर, सब कुछ जो था वो रेनेसेंस से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड था। So the architecture of Italy was largely influenced by the spirit of Renaissance. Now why Italy specifically? Because the birthplace of Renaissance was Italy. तो जो उसका बर्थ प्लेस था जहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट इनिशिएट हुआ, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमको वहीं के बिल्डिंग्स में ही दिखता है, दैट इज़ इटली। और वैसे तो पूरे या लाइक यूरोप में ही आपको जो बिल्डिंग्स हैं वो मोस्टली आपको इस एरा की, मिडिवल यूरोप की मिल जाएंगी, लेकिन जो उसका एक मेन सिग्निफिकेंस है या जो बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन में है, तो वो आपको इटली में दिखता है। द बिल्डर्स ऑफ दिस टाइम कंस्ट्रक्टेड मैनी चर्चेज, पैलेसेस and massive buildings following the style and pattern of ancient Greek and Rome. Now why ancient Greek and Rome? So recall from the, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो पीपल थे ईस्ट रोमन एम्पायर के, वो ही माइग्रेट किए थे वेस्टर्न यूरोप, लाइक वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न रोमन कल्चर में।
तो उन्होंने अपना जो ईस्टर्न कल्चर था वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, और उनका कल्चर स्पेसिफिकली ग्रीको रोमन था, तो उन्होंने वही वहाँ पे जाके री इंट्रोड्यूस किया था, रीबर्थ किया था उसको, तो हमको उसी का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे दिखता है. सो द पॉइंटेड आर्चेस ऑफ द चर्चेस and palaces were substituted by round arches, domes, and by the plain lines of the Greek temples. अभी लास्ट 2 to 3 years एक चर्च भी थी बहुत फेमस जिसमें आग लग गई थी, जो पेरिस में है, वो भी इसी आर्किटेक्चर को बिलोंग करती है. इट विल बी गुड इफ़ एनी वन ऑफ यू नो द नेम ऑफ दैट चर्च, just type it in the comment box. It is a very famous church and very ancient church also. So next point is of a painting. Now जो रेनेसेंस है उसका एक इम्प्रिंट पेंटिंग्स में भी दिखता है, क्योंकि पेंटिंग भी एक तरीका ही होता है जिसमें लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. पेंटिंग इज़ ऑल्सो अ वे टू एक्सप्रेस लाइक आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. सो पेंटिंग इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ मेथड वेयर पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स. सो इन पेंटिंग ऑल्सो जो उस टाइम के पेंटर्स थे उन्होंने रेनेसेंस से लाइक दे लर्न फ्रॉम द रेनेसेंस, उससे इंस्पायर होके उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे पेंटिंग स्टार्ट की. इनिशियली तो जो डार्क एजेस में जो पेंटिंग्स बनती थी वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी पे ही बेस होती थी, लाइक मॉन्क्स पे, चर्चेस पे, तो वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी पे ही बेस होती थी. बट रेनेसेंस में ऐसा हुआ कि पीपल ने स्टार्ट किया न्यू डायमेंशंस को सर्च करना, उन्होंने न्यू आइडियोलॉजीज़ को इनकलकेट किया, न्यू थॉट प्रोसेसेस को डेवलप किया. तो जो नया जो थॉट प्रोसेस था, जो नई आइडियोलॉजीज़ थी, फ़िलासफ़ीज़ थी, उनको पेंटिंग के मीडियम से भी डिपिक्ट किया और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द पेंटिंग कि रेनेसेंस के थ्रू क्या क्या चेंजेस जो पेंटिंग में आए. सो इन पेंटिंग द पेंटर्स ऑफ इटली ड्यूरिंग रेनेसेंस ब्रॉट एक्सीलेंस एंड बिकेम वर्ल्ड फेमस. तो जो पेंटिंग्स थी ना इटली की रेनेसेंस के टाइम की, उन्होंने एक एक्सीलेंस को अचीव किया और वो उस टाइम में ना वर्ल्ड फेमस थी. अभी भी एक पेंटिंग है वो बहुत फेमस है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो अमंग द पेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड लियोनार्डो दा विंसी ऑक्यूपाइड ए यूनिक पोजीशन. ये नेम आप लोगों ने आई एम श्योर ज़रूर सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है. द हिडन एक्सप्रेशन इन हिज पेंटिंग्स मेड दम अट्रैक्टिव. तो इनका जो एक स्टाइल था ना वो ये था कि जो अगर इनकी पेंटिंग को ध्यान से देखें तो एक अलग ही जो उनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता था या जो मेन फोकस होता था पेंटिंग में, उसका एक अलग ही एक्सप्रेशन होता था जो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पे हमें समझ में आता है. इस वजह से इनकी पेंटिंग्स बहुत ही फेमस थी. और एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये सबको ही पता है, मोनालिसा पेंटिंग. सो इस पेंटिंग की वजह से भी जो ये लियोनार्डो दा विंसी हैं ये वर्ल्ड फेमस पेंटर हुए थे उस टाइम के, एंड ये उसी टाइम को बिलोंग करते थे, रेनेसेंस के टाइम के. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑफ अ साइंस. नाउ व्हाई साइंस? बिकॉज रेनेसेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि लोगों में सोचने की डायरेक्शन को इवॉल्व करना, क्रिएट करना, क्योंकि लोग इनिशियली क्या करते थे, सिर्फ चर्च के ही ऑर्डर को मानते थे. They blindly follow all the ideologies and instructions which were put forward by the church, pope and these institutions. They do not question them, they do not argue whether it is right or wrong, whether it is it is in the ambit of the humanity or not. They just do it because the churches order this or that. So the development of science is a very good byproduct of this revolution, that is Renaissance. The age of Renaissance, science developed to great extent. Obviously जब एक critique develop हुआ क्वेश्चन करने का, तो जब आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो तो साइंस डेवलप ही होती है. जब आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो तो एक जो सेंस ऑफ रिसर्च है, सेंस ऑफ क्वेश्चनिंग है, वो डेवलप होता है, उससे उससे डिस्कवरीज होती हैं. So the development in astrology, medicine and other branches of science made this age distinct. इस जो रेनेसेंस पीरियड है उसका साइंस में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. ऑल्दो इट इज़ द कंट्रीब्यूशन इज़ इन आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट, सबका इक्वली है. एक साइंस इसलिए बिकॉज स्पेसिफिकली साइंस ने उस रेनेसेंस को आगे मूव किया, एनलाइटनमेंट में उसको आगे मूव किया, नेशनलिज्म में. सो द नेम ऑफ फ्रांसिस बेकन शाइन्स लाइक अ स्टार इन द रियल्म ऑफ साइंस. ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट.
हु एडवाइज्ड टू एक्सप्लोर नेचर, उन्होंने नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए एडवाइस किया। उन्होंने बोला कि हमारे जो आसपास का नेचर है हम उस पर ध्यान दें, उसको देखें और क्वेश्चन करें उसके बारे में। ही एडवाइज्ड द ट्रुथ वॉज टू बी डिसर्न्ड बाय एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बोला कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, जब चीज़ों को जानेंगे, रिसर्च करेंगे, तो हमें ट्रू नॉलेज मिलेगा। दिस आइडिया प्रॉम्प्टेड अदर्स टू रिगार्ड हिम एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंसेस। इस आइडिया की वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंसेस, क्योंकि वो मिडिवल से एक मूवमेंट था ना जो हमें मिडिवल से मॉडर्न टाइम्स में लेके आया। सो वाइल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द मैथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड ही ब्रेथ हिज लास्ट। तो उनकी डेथ कैसे हुई थी, वो एक मेथड ढूंढ रहे थे फूड को कैसे प्रिजर्व करना है, क्योंकि जब ये रेनेसेंस का पीरियड था, मतलब जब वर्ल्ड मूव कर रहा था मिडिवल से मॉडर्न के थ्रू, उस टाइम पे एग्रीकल्चर भी काफ़ी एक्सपेंड हुआ था। अब जब एग्रीकल्चर एक्सपेंड होता है तो देयर इज़ अ नीड कि हम उस एक्सपेंड जो मतलब जो हमारी सरप्लस हुई है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकें। सो वो उसी पे वन ग्रेट लाइक द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ रेनेसेंस इज़ लाइक इट क्रिएटेड अ टॉपिक ऑफ ह्यूमनिज्म। अर्लियर ये था कि गॉड ने ह्यूमन्स को क्रिएट किया है टू रूल द वर्ल्ड, और इन रेनेसेंस एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जो भी हमने अर्लियर पढ़ा भी था कि जो गॉड का ही रिप्रेजेंटेशन है मैन, एंड एवरी मैन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। सो एक मैन दूसरे मैन का हरासमेंट नहीं कर सकता, उसकी राइट्स को और प्रिविलेजेस को नहीं ले सकता। सो द रेनेसेंस हैड क्रिएटेड ह्यूमनिज्म इन मैन। उसने मैन में इंसानियत वाला जो टॉपिक है ना, एक वो डेवलप हुआ था रेनेसेंस में, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट एंड ग्रेट बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस मूवमेंट रेनेसेंस। इट इंक्रीज्ड द डिज़ायर इन मैन टू नो मोर एंड मोर, क्योंकि इस रेनेसेंस का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, टू क्वेश्चन, कि हर चीज़ को बस ब्लाइंडली और फॉलो मत करिए। अगर आपको कुछ बोला जा रहा है तो आप पहले उसको एनालाइज करिए, सोचिए कि वो सही है भी या नहीं, या फिर मतलब आपको बस ऐसे बोल दिया उसे करने के लिए तो आप उसको ब्लाइंडली बस फॉलो कर जा रहे हो। तो एक जो होता है ना सेल्फ एनालिसिस, एक वो टॉपिक इस रेनेसेंस के थ्रू डेवलप हुआ कि पहले हर चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। रैशनल थिंकिंग डेवलप हुई, एक क्वेश्चनिंग की पावर डेवलप हुई, ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ। सो दीज आर द वेरी ग्रेट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ग्रेट मूवमेंट रेनेसेंस। This Renaissance galvanized the development in the field of literature, art and science. It illuminated the world with new knowledge. So जो एक टाइम पीरियड था डार्क एज का, उसके जस्ट ऑपोजिट था ये रेनेसेंस। लेकिन अगर डार्क एज नहीं आती, इतना ज़्यादा पीपल सप्रेस नहीं होते, तो वो रिवॉल्ट भी नहीं करते, उनमें ये आइडिया आता भी नहीं कि वो चर्च को और या चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करें, क्रिश्चियनिटी को क्वेश्चन करें। नॉट क्रिश्चियनिटी means basically they question the blind following of the religious rituals or beliefs. So रेनेसेंस का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प किया उसने लिटरेचर में, जो न्यू लिटरेचर, न्यू फिलोसफीज़ डेवलप हुई, जो न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट, जो एक्सप्रेशन एक लाइक इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, वो डेवलप हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, रिसर्च डेवलप हुआ, ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ। सो दीज आर ऑल द वेरी ग्रेट contributions of Renaissance. So I hope you like this chapter. Your comments are very precious, so if you think anything can bring a change in the Limba classes, you can just comment below, and thanks for watching.